नाउ फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द टिपिकल वैल्यू ऑफ द आउटपुट रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर फॉर 741 ऑप एम्प? नाउ अगर हम आइडियली बात करें, अगर फर्स्ट आइडियली बात करें, आइडियली द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑप एम्प इज इनफाइनाइट सो दैट द इनपुट करंट is 0 and the output resistance is 0. So these are the value of infinite and 0 value for the input and output resistance. Now for the 741 IC, for 741 IC, the input resistance is 35 ohm and the output resistance is 10 की power 6 ohm. Clear है? Sorry, it is output पूछा है यहाँ पर. So output is this. Output is 35 ohm and input resistance value is 10 की power 6 because input value is infinite and output resistance is 0 ohm. So input resistance is very high so that the input currents taken by the op amp is almost 0 and the output resistance is 0. That means the ideal op amp behaves as an ideal voltage source. Clear है? तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है. तो इस क्वेश्चन का तो जो करेक्ट आंसर मिलेगा हमें डी मिलेगा. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेकंड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द इनपुट रेजिस्टेंस इन 741 ऑप एम्प? सो फॉर 741 द इनपुट रेजिस्टेंस we have also seen that is 10 की power 6 and output resistance is 35 ohm. So for this question the correct answer is D. for clear है? So next question start करते हैं. Now third और fourth question लेते हैं. An ideal op amp is an ideal voltage controlled current source, voltage controlled voltage source, current controlled current source, current controlled voltage source. तो देखते हैं जो ideal op amp है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. So ideal op amp is V0 upon Vi is equals to A and A is different, that is minus RF upon R1 and 1 plus RF upon R1, inverting and non-inverting case. ठीक है यहाँ तक. Now V0 equals to, I can write A Vi. Now in case of op amp the output is depend upon the input differential voltage. This is called input differential voltage. So output is depending or controlling with input voltage. That's why it is called voltage control, because output is controlling from where? Output is controlled or depend upon voltage. So it is controlling on voltage or depending upon voltage, and this is voltage source. So voltage source. So op amp is represented as voltage control voltage source. अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देता हूं यहां से, VJT JFET है और जो op amp है हम इनको कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो जो BJT है दैट इज कॉल्ड करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स and JFET is voltage controlled current source but the op amp is voltage controlled voltage source. So आपको ये तीनों भी याद रखने पड़ेंगे, बट इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बिल्कुल सही जो होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट होगा. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. द आइडियल op amp हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. नाउ आइडियल op amp में अगर हम बात करते हैं, आइडियल op amp की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें, सो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है. एंड गेन, द डिफरेंशियल गेन इज व्हाट? इनफाइनाइट. सो दैट द V1 and V2 are 0, that is called virtual short concept. And input resistance infinite means the input current is 0 and output resistance of op amp is 0. That means it is behaving as ideal voltage source. So चेक करते हैं. इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, गेन इनफाइनाइट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो 0 किस ऑप्शन में है? सो पहला ही ऑप्शन आई थिंक मेरे सामने है. इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, गेन इनफाइनाइट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस इज 0. क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने फिफ्थ और सिक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ऑप एम्प? तो आइडियल ऑप एम्प की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती थी अगर याद करें. इनपुट रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट होता है, गेन जो है वो इनफाइनाइट होता है, बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है, स्लीव रेट इनफाइनाइट होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है. क्लियर है? नेक्स्ट है जो ऑफसेट वोल्टेज है. ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है? 0 होता है. ऑफसेट वोल्टेज इज 0. दैट मीन ऑफसेट वोल्टेज का मतलब क्या है? when there is no input or equal input, then output should be equals to 0. So output should be 0 when V1 and V2 are
इक्वल, दैट मींस जो हमारा आइडियल ऑप एम्प है वो अगर उसके इनपुट टर्मिनल्स पर जो डिफरेंशियल इनपुट है वहां पर अगर इक्वल इनपुट लगाया जाएगा देन आउटपुट शुड बी जीरो। दैट मींस योर ऑप एम्प शुड ओनली वर्क व्हेन देयर इज ए डिफरेंशियल इनपुट। क्लियर है? देन इट वर्क्स। क्लियर है? सो ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो मैच करते हैं, बैंडविड्थ जो इनफाइनाइट है ये बिल्कुल सही होती है। परफेक्ट बैलेंस का मतलब यही होता है कि जो ऑफसेट वोल्टेज है वो जीरो होना चाहिए। सो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर देखें, गेन जो है इनफाइनाइट होता है, इसी वजह से वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट बनता है। जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इनफाइनाइट। तो हमसे पूछा है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक गलत है, तो गलत तो यही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ना, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर पॉजेस इनपुट इनफाइनाइट आउटपुट जीरो, इनपुट जीरो आउटपुट जीरो, इनपुट इनफाइनाइट आउटपुट इनफाइनाइट, इनपुट रेजिस्टेंस जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। सो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक को या प्रॉपर्टीज को सही से समझें, एक आइडियल ऑप एम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो ऐसा कहां लिखा है, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो, ए ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 7th और 8th क्वेश्चन लेते हैं। द कॉमन मोड रेशियो ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प इज, ठीक है, जीरो, इनफाइनाइट, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। हमारे पास दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। जो हमारा ऑप एम्प है इट शुड बी एबल टू एम्पलीफाई द डिफरेंस ऑफ द इनपुट सिग्नल। दैट मीन्स if V1 is not equals to V2 then output should be present, that is desirable condition. If V1 equals to V2 then output should be equals to 0. clear? That means हमारा जो op amp है वो इतना समझदार होना चाहिए, that should be able to identify that when both input are unequal then it should amplify that input signal. If both input are equal then it will not amplify that input signal. क्लियर है? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम रिजेक्शन रेशियो। तो अगर हम बात करें इस जो ऑप एम्प आइडियल ऑप एम्प का जो रिजेक्शन रेशियो है वो जीरो होना चाहिए, बट जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। बट हमसे यहाँ पूछा है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है? बट मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एन आइडियल ऑप एम्प ड्रॉस जीरो करंट, sum of the two input current, see the difference of the two input current, and last one is the infinite current. Now since अगर हम op amp का डायग्राम बना के देखते हैं, it is minus, it is plus, these are the inverting and non-inverting terminal and this is your output. Now since this is I1 and this is I2, the input resistance of op amp is what? Input resistance of op amp is infinite, so I1 is V1 upon R1, that is V1 by infinite, so it is 0. Similarly I2 is also 0. Now due to the infinite input resistance, the input current drawn by the op amp is 0. clear है? So the correct answer is A. clear है? Next question start करते हैं। Now 9th और 10th question देखते हैं। An ideal op amp slew rate is, so अगर slew rate की definition देखें, slew rate is what? Slew rate is defined as the maximum output change, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट चेंज, दैट इज आउटपुट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है मैक्सिमम कितना है। सो स्लू रेट ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प इज इनफाइनाइट। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू बैलेंस द ऑफसेट वोल्टेज ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर ए स्मॉल डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू इनपुट टर्मिनल्स वेयर द कनेक्शन इज series with both inverting as well as non-inverting input, series with non-inverting, shunt with non-inverting input, and last one is shunt with non-inverting. ठीक है? So पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जो offset है वो क्या होता है। So offset is a phenomena that gives you non-zero output voltage even if there is no input at the op amp input, or when op amp is having equal input. So V0 is not 0 when V1 and V2 is 0 volt. clear है? Now to reduce this output voltage, जब आपका इनपुट वोल्टेज 0 है बट आउटपुट वोल्टेज 0 नहीं है, इस वोल्टेज को बोलते हैं ऑफसेट वोल्टेज। To reduce
this voltage, we apply external source in series with both input of opposite polarity तो जब हमारा इनपुट जीरो है बट आउटपुट जीरो नहीं है, तब इस आउटपुट वोल्टेज को जीरो करने के लिए हम एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगाते हैं इनपुट में, सीरीज में बोथ इनपुट के साथ, जो कि अपोजिट पोलैरिटी का होता है। अगर आप डायग्राम देखना चाहें तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। सपोज ये आपका पहला इनपुट और ऑफसेट जो है इसकी वजह से है, देन यू जस्ट टेक VO ऑफसेट। क्लियर? दिस इज आउटपुट, दिस इज योर V1 and this is output. So out input offset voltage are connected in series with the inverting as well as non-inverting, but it should be of opposite polarity so that voltage should be cancelled out. क्लियर है? तो अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो सीरीज में लगना चाहिए और दोनों इनपुट के साथ। तो पहला ऑप्शन ही कह रहा है सीरीज with both inverting as well as non-inverting input। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 11th और 12th क्वेश्चन समझते हैं। ए वर्चुअल ग्राउंड इन एन ऑप एम्प इज ग्राउंड फॉर वोल्टेज ओनली, करंट ओनली, बोथ, दैट इज सी, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले वर्चुअल जो ग्राउंड का कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। नाउ एक ऑप एम्प लेते हैं जो 3 टर्मिनल डिवाइस है। It is V1, it is V2, and this is your output. Now, in case of ideal op amp, the gain is infinite. Gain is infinite. So gain is what? V0 upon differential input, and differential input is what? V2 minus V1. Now gain is infinite, so V0 minus V1, that is equals to V0 upon A, and A is infinite. So something by infinite is 0, so V2 equals to V1. So the virtual ground concept is valid for voltage, ठीक है यहाँ तक। So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा? A। Now next thing is what? अगर हम किसी भी एक टर्मिनल को ग्राउंडेड कर देते हैं, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग दिस 2 एट ग्राउंड वोल्टेज, 0 वोल्टेज, देन अकॉर्डिंग टू द वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट, इफ V2 is 0 volt, then V1 is also automatically 0 volt. So this terminal is also 0 volt. That concept is known as the virtual short concept, and on this concept we solve the different numericals of the op amp. If you don't use this concept, you are not able to solve any problem of op amp. Clear है? Next question देखते हैं। If the ground is applied to the positive terminal of an inverting op amp, then the negative terminal will be, same question है जो मैंने बताया, if the ground is applied to the positive terminal of इन्वर्टिंग ऑप एम्प, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम ग्राउंड पे अप्लाई कर देंगे, देन जो इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, देन द नेगेटिव टर्मिनल विल बी ग्राउंडेड, इट विल ऑटोमेटिकली ग्राउंडेड बाय द वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट. सो व्हेन either of the terminal is grounded, when either of the terminal of an op amp is grounded, then automatically other terminal will be at the same potential. This concept is known as the virtual short concept. Clear है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा that is called B, virtual ground. So B option. Clear है यहाँ तक? Next देखते हैं. Now 13 और 14 क्वेश्चन देखते हैं. The two input terminals of an op amp are branded as inverting, non-inverting, differential, non-differential, positive, negative, high and low. So बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो दो इनपुट हैं op amp के उनको क्या बोला जाता है? That is called inverting and non-inverting input. Inverting अगर इनपुट पर आप सप्लाई देते हो, इनपुट वोल्टेज करते हो, then you will get 180 degree phase shift whose gain is V0 upon Vi equals to minus Rf upon R1. Now if you applied the input voltage at the non-inverting or the positive input, then you get the gain, that is V0 upon Vi equals to 1 plus
RF upon R1 and phase shift is 0 degree, but in the earlier case the phase shift is 180 डिग्री। क्लियर है? सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए, बिल्कुल ए सही होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, एन ऑप एम्प इज रिफर्ड एज 4 वायर 2 पोर्ट डिवाइस, 3 वायर 2 पोर्ट डिवाइस, 2 वायर 1 पोर्ट डिवाइस एंड 2 वायर 2 पोर्ट डिवाइस। तो अगर मैं सिग्नल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, सिग्नल पॉइंट ऑफ व्यू, तो सिग्नल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डायग्राम देखता हूं, देन वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ सर्किट, माइनस प्लस 1 2 and 3. So the op amp is a 3 terminal device. Now if we made one input as, if we made one wire as common, then we have 4 wire, and the 4 wire is treated as 2 port device. In general it is 3 wire, but if you made one wire common, then this device is treated as the 2 port device. Like if you have a BJT example, अगर हम example लेते हैं, then we have, suppose this is your base, this is your emitter, and this is your collector. Now if you made base emitter common, then 1 dash, and we have 2 and 2 dash. So 3 terminal device can be made, 4 terminal or 2 port device when you made one terminal common between the input and output, then it is treated as the 2 port device. क्लियर है यहाँ तक? सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? एक्चुअल में इसके पास कितने वायर होते हैं? 3 इनपुट होते हैं, बट इफ यू मेड वन कॉमन देन इट इज कॉल्ड 2 पोर्ट और 4 वायर डिवाइस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 3 वायर 2 पोर्ट डिवाइस, बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड करंट आर 2 मिलीवोल्ट एंड 150 नैनो एम्पियर। अब अगर मैं टोटल ऑफसेट वोल्टेज की बात करूं, टोटल ऑफसेट वोल्टेज that is called V01 plus V02. Now it is due to, अगर मैं बात करूं, first it is due to VI and it is due to I of I naught। ठीक है ना? जो आउटपुट वोल्टेज है, the output offset voltage due to voltage is 2 type, when op amp is inverting or non inverting। अगर ये inverting है then it is RF upon R1 V1 VI, then it is, if non inverting, 1 plus RF upon R1 VI। so अगर मैं बात करता हूं जो टोटल ऑफसेट वोल्टेज है, that is of V0 minus RF upon R1 V1, that is VI, I of I naught into RF, or 1 plus RF upon R1 V1 or VI plus the input ऑफसेट करंट I of I into RF। अब चेक करते हैं दोनों फॉर्मूलेज में ये वैल्यू लगाते हैं, देखते हैं किससे ऑप्शन हमारा आता है। सो RF कितना है? RF है 500 अपॉन 5 इंटू V is 2, द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज 2 मिलीवोल्ट, सो इट इज व्हाट 100, सो माइनस 200 प्लस हाउ मच 150 इंटू हाउ मच इज द RF 500K, 10 की पावर 3 and it gives you 10 की पावर minus 6, so it is minus 200 plus 15 5 जा 75, so 000 into 10 की पावर minus 3 already, so cancel out, so it is minus 125 millivolts। so is there any option of 125 millivolt? so this is only valid for what? the inverting mode। now इस फॉर्मूले में लगा के देखते हैं। so 1 plus, so it is 100, sorry it is 200, so 200 plus 1, क्योंकि 500 divide by 5, that is 100 plus 101 into 2 plus this factor is same, so it is 75, so it is 75। okay, so 101 multiplied by 2, so 202 plus 75, so it is 277, so 277 millivolt is your total offset voltage when you consider this op amp as non-inverting। let's check the option। so is there any option? yes, correct option is 277। क्लियर है यहाँ तक?
और ये ध्यान भी रखेगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो कम आते हैं बट अगर आ जाए तो आपको उनको सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक?